Volume set to 65%. Assalamu alaikum. Good morning, student. I hope that you all will be very good. You all will be fine. Today we are going to discuss our new topic, which is concerned with the subject of management of PCC, physically challenged children, Screen off. course code SPED 3132. The topic which we are going to discuss today is the last topic of chapter number 3, and it is 3.7 education and counseling. Guys, keep in the mind that this is very interesting topic. This topic will develop your philosophical thoughts. This topic will give you the idea that what is the role of the teacher as a counselor. So this topic will make you understand that how you can perform your duties, or how you can work as a good human being around your matrix. So all these things are very important that we will discuss today. So let's start our discussion, but before going to start our discussion today, I would like to have a review of our previous discussion that we made in our chapter number 3. We started chapter number 3 with the introduction of health impairments. After that, we worked on 3.1 asthma, lungs disease, and after that, we discussed 3.2 cystic fibrosis CF. After that, we discussed 3.3 blood diseases. Then we discussed 3.4 inborn error of metabolism. After that, we discussed 3.5 juvenile arthritis, and then we discussed 3.6. It is the management and educational implications of all those impairments that we discussed in chapter number 3 earlier. Now we are going to discuss 3.7, which is education and counseling. So let's start our discussion with the agenda as we do in our usual classes. So after the successful completion of this topic, you will be able to, number 1, define education and its educational methods. आप एजुकेशन को भी डिफाइन कर सकेंगे और इसमें यूज़ होने वाले एजुकेशनल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी डिफाइन कर सकेंगे. नंबर 2, एक्सप्लेन राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन का जो बेसिक राइट है वो क्या है, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इजीली. नंबर 3, इलेबरेट काउंसलिंग. आपके नज़दीक काउंसलिंग क्या है आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे. हम काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि काउंसलिंग क्या चीज़ है. नंबर 4, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ काउंसलर. काउंसलर का अपना रोल क्या है जहन में रखें. एक जो टीचर है वो काउंसलर भी होता है, और एक टीचर के लिए बहुत अच्छा काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर ने बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ माशरे में रहने के लिए उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको रास्ता दिखाना है, उसको समझाना है, चीज़ें बतानी है. और एजुकेशन है ही इसी चीज़ का नाम कि नोन टू अननोन, कि जिसको पता है वो उसको बताएगा जिसको पता नहीं है. और एजुकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस इन दिस रिगार्ड. नंबर 5, स्पीक अबाउट काउंसलिंग स्किल्स. काउंसलिंग की जो स्किल्स हैं उनके बारे में आप इजीली बता सकेंगे. एंड नंबर 6, द लास्ट पॉइंट फॉर दिस एजेंडा इज नो द इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन एजुकेशन. एजुकेशन में काउंसलिंग की क्या अहमियत है आप इसके बारे में यकीनन जान जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे.
So let's start our discussion today, guys. I hope that you all will be with fresh mind. This is the time of the morning. I am Kashif Iqbal, lecturer special education. So we are going to start our discussion with the definition of education. You know very well, guys, that we have multiple definitions of educations previously, but I have selected only two definitions for you which are easy to understand. Number one, education is a process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें फैसिलिटेट किया जाता है लर्निंग को, नॉलेज के हासिल करने को, स्किल्स को, और ये सारी जो वैल्यूज़ है, बिलीव्स है या हैबिट्स है, इनको फैसिलिटेट किया जाता है, इनको प्रोवाइड किया जाता है, बच्चे के अंदर शेप अप किया जाता है. नंबर टू, डेफिनेशन नंबर टू, ये वो डेफिनेशन है जो मैंने अपने टीचर से सीखी थी. मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे, तो उनसे मैंने सीखी थी, और ये डेफिनेशन इसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, मोटिवेट किया. और ये जो दूसरी डेफिनेशन है, ये मैं अपने टीचर से ही कोट करूँगा. एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर मॉडिफिकेशन. एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का. अब एजुकेशन ये तो हमें समझ आ रही है कि भाई एजुकेशन जो है ना प्रोसेस है. हमने ये देखना है एजुकेशन प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है. तो जवाब मिला बिहेवियर मॉडिफाई का. किसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हो रही है? किसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कोशिश की जा रही है? किसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन को फोकस किया जा रहा है? तो ये बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करने की बात हो रही है, चाइल्ड इन द स्कूल. फिर हमारे पास आ जाता है कि किसकी डिज़ायर के मुताबिक, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही देखा, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर मॉडिफिकेशन. देखा ये जाता है किसकी डिज़ायर के मुताबिक? तो टीचर की डिज़ायर के मुताबिक. सो जब बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई टीचर की डिज़ायर के मुताबिक किया जाएगा, दिस विल बी कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. ये है इसकी सेकंड डेफिनेशन. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एजुकेशन मेथड्स. अब हम ये देखते हैं कि एजुकेशन मेथड्स में क्या क्या शामिल है. इसमें नंबर 1 पे टीचिंग है, आप देख सकते हैं स्लाइड में. नंबर 2 ट्रेनिंग है. नंबर 3 स्टोरी टेलिंग है. नंबर 4 डिस्कशन है. नंबर 5 डायरेक्टेड रिसर्च है. तो ये वो तरीके हैं जो कि एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 इंक्लूड कराए हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है. तो लेकिन ये 5 ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो कि यूज़ किए जाते हैं. अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एजुकेशन टेक्स प्लेस. Education frequently takes place under the guidance of educator. एजुकेशन जो है ना हमेशा एजुकेटर के ज़रिए ही मिलती है. However, learners can also educate themselves. लेकिन ताहम जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ख़ुद को भी एजुकेट कर सकते हैं. मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में एक टर्म यूज़ की थी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की. आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी ये टर्म यूज़ हुई जब मैंने आपको असाइनमेंट एक दी थी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. ये जब लर्नर खुद को एजुकेट करता है ना, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग.
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिचुएशन फॉर एजुकेशन. एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग. अच्छा, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग से क्या मुराद है? फॉर्मल सेटिंग से मुराद है क्लासरूम और इनफॉर्मल सेटिंग से मुराद है आउट ऑफ क्लासरूम. एजुकेशन कहीं भी हो सकती है, क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी. एंड एक्सपीरियंस दैट हैज़ अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द वे वन थिंक्स, फील्स और एक्ट्स मे बी कंसीडर्ड एजुकेशन. अच्छा, ये फिर इसमें ऐसा एक्सपीरियंस शामिल होता है जो कि आपकी लर्निंग का हिस्सा होता है, और ये एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, टाइम टू टाइम सामने आता है, जो कि इंसान की सोचों को, जज्बात को, एहसासात को चेंज करके रखता है. तो दिस इज़ कॉल्ड एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू is divided formally into the stages. like फॉर्मल एजुकेशन की जो स्टेजेस हैं हम उनको ज़रा जिक्र कर लेते हैं. नंबर 1, प्री स्कूलिंग, किंडरगार्टन, ये स्टेज नंबर 1 है. उसके बाद फिर प्राइमरी स्कूल है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, 1 to 5. उसके बाद सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद कॉलेज है, उसके बाद यूनिवर्सिटी है, या कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो सकता है. तो ये वो स्टेजेस हैं जो कि एजुकेशन के उसमें कंसीडर की जाती हैं. अब हम बात करते हैं पेडागॉजी क्या है. व्हाट इज़ पेडागॉजी? देखें, ये दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक पेडागॉजी होती है, एक एंड्रागॉजी होती है. पेडागॉजी मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज़ कॉल्ड पेडागॉजी. और जो एंड्रागॉजी वो तो हो गया टीचिंग ऑफ एडल्ट्स. तो हम लोग बात करें पेडागॉजी की, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग. ये दो टर्म चूँकि एसोसिएटेड थी, इस वजह से मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन के लिए राइट क्या है, ये ज़रा देखते हैं. A right to education has been recognized by some governments and the यूनाइटेड नेशन. अभी एजुकेशन का जो राइट है वो कई गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन की जानिब से उसको रिकग्नाइज किया जा चुका है. इन मोस्ट रिसेंट, एजुकेशन इज़ कंपल्सरी अप टू अ सर्टन एज. एक मखसूस एज तक एजुकेशन का होना बहुत लाजमी है. देयर इज़ अ मूवमेंट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स and in particular for evidence based education. एजुकेशन के लिए हमेशा एक तहरीक चलाई जाती रही है, और यकीनन आजकल भी ये एक तहरीक है. और आपने यकीनन सुना होगा कि एजुकेशन फॉर ऑल का जो नारा है या जो स्लोगन है वो काफ़ी फेमस हो चुका है, एजुकेशन फॉर ऑल. सो यहाँ तक हमारे पास जो डिस्कशन थी वो थी एजुकेशन के हवाले से. अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के हवाले से. काउंसलिंग क्या है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, आप देखेंगे. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे आए थोड़ा सा. मैनी पीपल विल एट सम पॉइंट in their lives find themselves in the role of a counselor without having the true understanding of the concept of the counseling or what the role of professional counselor entails. कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुद को बहुत अच्छा काउंसलर समझते हैं, बग़ैर इस चीज़ की समझ बूझ रखते हुए
कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, काउंसलिंग है क्या चीज़, और प्रोफेशनल काउंसलर का रोल क्या है। There is a big difference between a professional counselor and a person who uses some counseling skill. I'm sorry. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में और उस शख्स में जो सिर्फ चंद काउंसलिंग की स्किल यूज़ करके समझता है कि जी मैं भी एज अ काउंसलर काम कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ फ्रेंड और अ कोलीग, एक फ्रेंड या एक आपके जो कोलीग हैं वो हो सकता है कि बतौर ह्यूमन बीइंग, बतौर पर्सन तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर वो खुद को काउंसलर समझ के हर वक्त आपकी काउंसलिंग करते रहें और फिर यही, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट कंपेयर देम विद प्रोफेशनल काउंसलर। अ प्रोफेशनल काउंसलर इज़ अ हाईली ट्रेन इंडिविजुअल। एक प्रोफेशनल काउंसलर होता क्या है? एक प्रोफेशनल काउंसलर वो होता है जो एक हाईली ट्रेन इंडिविजुअल होता है, who is able to use a different range of counseling approaches, जो कई तरह की काउंसलिंग अप्रोचेज यूज़ करने के काबिल होता है विद देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के साथ। क्योंकि हम जानते हैं ना कि काउंसलिंग में दो लोग होते हैं, एक होता है काउंसलर और दूसरा होता है काउंसली, जिसको हम लोग क्लाइंट भी कहते हैं। अब ज़रा डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग की बात की जाए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि कंसाइज है उसके मुताबिक, उसका जो 9th एडिशन है उसकी काउंसलिंग के हवाले से उसकी दो डेफिनेशंस हैं which appear to be conflicting, adding to potential confusion। अब ज़रा हम उसको देखते हैं कि क्या उनकी डेफिनेशंस है। गिव एडवाइस टू अ पर्सन ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स स्पेशली प्रोफेशनली। किसी भी बंदे को ऐसी एडवाइस देना, किसी भी बंदे को ऐसी एडवाइस देना कि जो प्रोफेशनली उसके हवाले से उसको या सोशली उसको एडजस्ट करें। दूसरी डेफिनेशन की बात की जाए, द प्रोसेस ऑफ assisting and guiding clients, especially by a trained person on a professional basis to resolve especially personal, social or psychological problems and difficulties। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है असिस्टिंग का, हेल्प करने का और गाइडिंग का, जो कि क्लाइंट के लिए होता है, ख़ासकर एक प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन की जानिब से, जो कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करता है ताकि उसके जो पर्सनल, सोशल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हल किया जा सके, रिज़ॉल्व किया जा सके। अच्छा, एक इसी तरह सादा डेफिनेशन यूके की NHS की एक वेबसाइट है, उनकी जाने से जो काउंसलिंग की डेफिनेशन दी गई वो ज़रा हम देख लेते हैं। A talking therapy that involves a trained therapist listening to you and helping you find ways to deal with emotional issues। कि ये एक टॉकिंग थेरेपी है
जिसमें एक ट्रेंड थेरेपिस्ट होता है, वो इन्वॉल्व होता है और वो आपको लिसन कर रहा होता है, सुन रहा होता है और आपकी मदद कर रहा होता है कि आप उन रास्तों को तलाश कर सकें, उन रास्तों को ढूंढने में आपकी मदद करता है जिनकी मदद से आप अपने इमोशनल इश्यूज़ को डील कर सकते हैं। अब हम मेरे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है, फोर एस्पेक्ट्स। काउंसलिंग में कई तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम है कि जिसमें काउंसलर ट्रेंड होता है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। द प्रोसेस इज़ अबाउट हेल्पिंग यू टू फाइंड वे टू डील विद योर प्रॉब्लम्स, कि जिसमें आप वो रास्ता ढूंढें जिसमें आप अपने प्रॉब्लम के साथ डील कर सकें, रादर देन गिविंग एडवाइस और टेलिंग यू व्हाट टू डू, खाली बताने की बजाय कि भाई आपने करना क्या क्या है। दिस इज़ नॉट राइट। तो ये इस बात को मैं ज़रा दूसरे तरीके से भी स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि काउंसलिंग में ये नहीं होता कि खाली बातें की जाएँ सिंपलेस्ट वे में, कि रास्ता बताया जाए, आप यूँ कर लें जी, यूँ कर लें तो यूँ हो जाएगा, यूँ कर लें। नो, इसमें बंदे के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा की जाती है कि जिसकी मदद से वो अपने इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स को खुद हल कर सकता है। इंसान के अंदर ये एक एबिलिटी मौजूद होती है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। There are number of things that it is generally agreed that counseling is, a number of others that it is not. कई चीज़ ऐसी हैं कि जिसमें इस पे मुत्तफ़िक हुआ गया है कि काउंसलिंग है, कि जिसमें काउंसलिंग के वजूद को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और कई लोग मानते भी नहीं हैं काउंसलिंग के वजूद को, काउंसलिंग की अहमियत से इनकार करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग की अहमियत को रिकग्नाइज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि काउंसलिंग है क्या, व्हाट इज़ काउंसलिंग या काउंसलिंग इज़। नंबर 1, the process that occurs when a client and counselor set aside time to explore difficulties which may include the stressful or emotional feelings of the client। कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब जिसमें क्लाइंट और काउंसलर जो है वो ऐसा टाइम सेट करते हैं जिसमें वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्लोर करता है क्लाइंट, और ये उसकी स्ट्रेसफुल या इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी वो एक्सप्लोर कर रहा था उस मखसूस टाइम में। दूसरे नंबर पे, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग द क्लाइंट to see things more clearly, possibly from a different viewpoint. This can enable the client to focus on feelings, experiencing behavior with the goal of facilitating positive change. अच्छा, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्लाइंट की हेल्प की जाती है, जिसमें वो चीज़ों को बड़ा वाज़ेह देख सकता है, मुख्तलिफ एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट तरीके से सोचने की एक सलाहियत पैदा होती है। इससे क्लाइंट को मदद मिलती है कि वो फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस या बिहेवियर पे फोकस कर सके, जिससे और उसके अंदर एक गोल भी होता है कि वो उन चीज़ों के अंदर एक बेहतर तब्दीली ला सकता है। तीसरा पॉइंट, आ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ये जो काउंसलिंग है ये एक ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज पैरामाउंट। पैरामाउंट कहते हैं डोमिनेंट को, जो चीज़ टॉप प्रायोरिटी पे हो,
तो कॉन्फिडेंशियलिटी टॉप पे होती है। टू सक्सेसफुल काउंसलिंग, बहुत अच्छी काउंसलिंग के लिए जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लाजमी होती है। प्रोफेशनल काउंसलर विच यूजुअली एक्सप्लेन देयर पॉलिसी ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे ही अपनी पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं। They may, however, be required by law to disclose information if they believe that there is a risk to life. अगर ज़िंदगी का ख़तरा हो तब जाके वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करते हैं किसी की जान, अदरवाइज़ वो कभी नहीं करते। अब जो लोग कहते हैं कि काउंसलिंग, पहले तो हमने ये देखा कि काउंसलिंग इज़, कौन से लोग कहते हैं काउंसलिंग इज़, हमने दो देखा। अब हम देख रहे हैं काउंसलिंग इज़ नॉट, कि कौन से लोग जो काउंसलिंग पे बिलीव नहीं करते। देखते हैं नंबर 1 पे गिविंग एडवाइस। काउंसलिंग इस वजह से एक्सेप्ट नहीं की जाती कि इसमें एडवाइस दी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, ये वो उस सेंस में बात की जा रही है जो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते चीज़ों को। नंबर 2 बीइंग जजमेंटल, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि काउंसलिंग में फ़ैसला हो जाता है, एक बंदा दूसरे पर अपना फ़ैसला मुसल्लत कर रहा है। तीसरे नंबर पे है अटेम्प्टिंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट, कि इसमें जो बहुत लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से काउंसलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने, काउंसली जो आपका जो क्लाइंट होता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट एक्सपेक्टिंग और एनकरेजिंग अ क्लाइंट टू बिहेव एज counselor would behave if confronted with a similar problem in their own life। अच्छा, इसमें एक्सपेक्ट भी किया जाता है फिर एनकरेज भी किया जाता है, किसको? क्लाइंट को, कि उस तरह बिहेव करे जिस तरह काउंसलर बिहेव करेगा। अगर वो मुकाबला कर रहा है सेम उस प्रॉब्लम का जो वो दोनों फेस कर रहे हैं, मतलब अगर काउंसलर को भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको एनकरेज भी किया जाएगा और उसको फोर्स किया जाएगा कि वो भी इसी तरह बिहेव करे जिस तरह काउंसलर उसका मुकाबला कर रहा है। हालांकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, काउंसलर की इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है और क्लाइंट की इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद द क्लाइंट। ये वो पॉइंट है जो बड़ा डेंजरस है। काउंसली क्लाइंट अगर इमोशनल है तो काउंसलर को कभी भी उसके साथ इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है तो वहाँ पे फिर ये चीज़ होती है सम टाइम, इस वजह से काउंसलिंग को ज़्यादा वो नहीं किया जाता इसमें। नेक्स्ट है लुकिंग एट अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। आप क्लाइंट का जो मसला होता है उसको आप अपने ही पर्सपेक्टिव से, व्यू पॉइंट से देख रहे होते हैं, बेस्ड ऑन योर ओन वैल्यू सिस्टम। जो आपका अपना जो एक वैल्यू सिस्टम बना होता है जिसकी बेस पे वो बेस कर रहा होता है, आप उसी नज़र से ये कहा इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपनी ही नज़र से सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग आर वेरी सिमिलर, दोनों सेम ही है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन इतने भी सेम नहीं है। Both describe a process of helping the someone to terms with and work with solutions to their problems। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस तरह भी सेम नहीं है, दोनों में काम सेम होता है। ये कहा जा सकता है कि दोनों में ही जो है ना, जो
प्रॉब्लम को ही जो क्लाइंट होता है, जो भी काउंसली होता है, उसका जो प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करने की, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही होती है। हाउ एवर दे वेरी इन अप्रोच, ताहम ये अप्रोच में मुख्तलिफ है, सोच में भी मुख्तलिफ है, उस तरीक़ाकार में मुख्तलिफ है जिसमें इनको अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारे पास, काउंसलिंग इज अ हेल्पिंग अप्रोच that highlights the emotional and intellectual experience of the client. काउंसलिंग एक ऐसी हेल्पिंग अप्रोच है जो कि हाईलाइट करती है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस को। किसको? किसके? क्लाइंट के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती है कि एक क्लाइंट कैसे फील करता है और वो अपने प्रॉब्लम को किस नज़र से देखते हैं जिसके लिए उन्होंने वो हेल्प मांगी है। दूसरा, अभी ये तो काउंसलर, अभी साइकोथेरेपी को देखा जैसे के मुकाबले में, तो साइकोथेरेपी का पॉइंट ये है, साइकोथेरेपी बेस करती है साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस पे, विच एनकरेजेस द क्लाइंट टू गो बैक देयर अर्लियर एक्सपीरियंसेस, जो कि हेल्प करती है क्लाइंट की कि वो अपने अर्लियर एक्सपीरियंसेस की जानिब वापस जाएं, एंड एक्सप्लोर हाउ दीज एक्सपीरियंसेस इफेक्ट देयर करंट प्रॉब्लम, कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मौजूदा प्रॉब्लम को कितना मुतासर करते हैं, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना टच करते हैं। इसलिए एक जो साइकोथेरेपिस्ट होता है हेल्प्स द क्लाइंट टू बिकम कॉन्शियस ऑफ एक्सपीरियंस। एक साइकोथेरेपिस्ट हमेशा क्लाइंट की मदद करता है कि वो अपने उस एक्सपीरियंसेस के हवाले से कॉन्शियस हो, विच दे वर प्रीवियसली अनअवेयर ऑफ, जिसके वो पहले अवेयर नहीं थे, आगाह नहीं थे। काउंसलर जो है वो क्या है? लेस लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस of the client and are generally trained in humanistic approach using techniques from client centered therapy। अच्छा, अब जो काउंसलर हैं वो इन पास्ट एक्सपीरियंसेस से ज़रा दूर होते हैं। अच्छा, तो ये जो साइकोथेरापेटिक होते हैं ये काउंसलर के पास्ट एक्सपीरियंसेस से इतना करीब नहीं होते, लेकिन जो काउंसलर होते हैं ये पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो काउंसलर का जो पास्ट एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा कम होते हैं, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे ट्रेन किए जाते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल की जो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है या इंडिविजुअलिटी है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसकी केयर की जाती है, और ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी अप्रोच यूज़ करते हैं जो काउंसलर होते हैं। साइकोथेरापेटिक जो साइकोथेरापिस्ट होते हैं वो साइकोथेरापेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं, और वो यकीनन ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे होता है जो साइकोथेरापिस्ट होता है। लेकिन जो काउंसलर होता है ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी अप्रोच, मतलब क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक उसके साथ जो है ना टेक्निक्स यूज़ करता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट, द रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर का रोल क्या है? सबसे पहले अहम, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, काउंसलर नीड टू बी अवेयर दैट no two people are alike। काउंसलर के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसे जानना चाहिए कि लोग होते कैसे हैं। दूसरा पॉइंट,
नो टू पीपल अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज इन द सेम वे। क्या वो ये जानता है, उसको ये काउंसलर को ये जो काउंसलर होता है उसको ये जानना चाहिए, या वो ये ज़रूर जानता है कि लोग सेम लैंग्वेज ही समझते हैं, उसी तरीके से कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिंक होती है। द रोल ऑफ द काउंसलर देयरफॉर, इसलिए जो काउंसलर का जो रोल है, इज़ टू हेल्प द क्लाइंट टू डेवलप ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन। तो काउंसलर का जो मेन रोल है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अपने क्लाइंट के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करना कि वो अपने प्रॉब्लम की सिचुएशन को खुद अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दे विल एनेबल द क्लाइंट टू एक्सप्लोर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड फीलिंग्स। काउंसलर जो है अपने क्लाइंट को इस काबिल कर देते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके और अपनी जो लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सके। बाई टॉकिंग ओपनली और फ्रीली, उनके साथ ओपनली और फ्रीली बात करने से, ये चीज़ काउंसलर उनके साथ ओपनली और फ्रीली बात करता है, जिससे वो अपने जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होते हैं या फीलिंग्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाता है। टॉकिंग दैट्स लाइक दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल विद फैमिली और फ्रेंड्स, और इस तरह बात करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी यकीनन इम्पॉसिबल है। who are likely to be emotionally involved and have opinion and biases that may affect the discussion, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जब आप बात करते हैं तो उसमें बायसनेस होती है। क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं होता, आपको अनबायस्ड रह के बात करनी पड़ती है एज अ काउंसलर। टॉकिंग टू अ काउंसलर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस डिफिकल्ट फीलिंग सच एज एंगर, resentment, guilt and fear in a confidential environment. काउंसलर के साथ जो बात करना होता है, ये क्लाइंट्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें वो अपनी डिफ़िकल्ट फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर, गुस्सा हो गया, कोई ऐसी तलखी जो कि लहजे में घुली हुई हो, गिल्ट फीलिंग्स हैं या फियर, खौफ की कैफियत है, लेकिन ये चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं क्लाइंट की जानिब से काउंसलर के साथ एक कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट में। तो अगला पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, द काउंसलर में एनकरेज द क्लाइंट टू examine the parts of their lives that they may have found difficult or impossible to face before। तो काउंसलर हमेशा एनकरेज करता है अपने क्लाइंट को ताकि वो अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों को मायना कर सकें जो कि इससे पहले फेस करने में या समझने में मुश्किल थे। देयर मे बी एक्सप्लोरेशन ऑफ सम अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इसमें बच्चे के भी बचपन के भी कुछ वाक़यात, हालात और वाक़यात ऐसे हो सकते हैं। टू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाई एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड इन सर्टन वेज इन डिफरेंट सिचुएशन, के मखसूस सिचुएशन में, मखसूस हालात में एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड कैसे करता है। This is often followed by considering ways in which the client may change such behaviors,
और ये अक्सर उस वक्त फॉलो किया जाता है उन तरीक़ों को कंसीडर करते हुए जिसमें जो क्लाइंट है इस तरह के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट है, गुड काउंसलिंग शुड रिड्यूस द क्लाइंट्स कन्फ्यूजन। एक अच्छी जो काउंसलिंग होती है वो क्लाइंट का कन्फ्यूजन दूर करती है। अलाउइंग देम टू मेक इफ़ेक्टिव डिसीजन, उनको ये इस चीज़ का इख्तियार देती है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव डिसाइड कर सके, फैसले कर सके। लीडिंग टू पॉजिटिव चेंजेस इन देयर एटीट्यूड, जो कि उनके जो एटीट्यूड होते हैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, या बिहेवियर में भी बहुत अच्छा चेंज लेके आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग इज टू enable the client to make their own choices, reach their own decision and act upon them। अब काउंसलिंग का जो अल्टीमेट गोल होता है वो ज़रा गौर से सुन लेंगे। क्लाइंट को इस काबिल बनाना ताकि वो अपनी चॉइसेस कर सकें, चीज़ों को चुन सकें, चॉइस कर सकें, अपने फैसले खुद कर सकें और फिर उन पे अमल भी कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, ये नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, काउंसलिंग स्किल्स। देयर आर नंबर ऑफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द काउंसलर। काउंसलर के अंदर बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है। परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर गुड कम्युनिकेशन स्किल। शायद जो सबसे बेहतरीन जो स्किल है वो है बेस्ट कम्युनिकेशन। काउंसलर नीड टू बी पर्टिकुलरली एबल टू लिसन इफेक्टिवली। काउंसलर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सुन सके। गिविंग देयर फुल अटेंशन टू द क्लाइंट को अपनी पूरी अटेंशन दे सके। दे नीड टू बी अवेयर ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। काउंसलर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसे बॉडी लैंग्वेज की भी समझ आती हो और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी समझ आती हो। देखिए, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है ना, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल वो होती है जो हम बोलते हैं, एक स्टडी के मुताबिक ये तकरीबन 25 to 30% होती है जो हम बोल रहे होते हैं। और नॉन वर्बल वो होती है जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी जेस्चर्स, फिंगर मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल है, नेक मूवमेंट वगैरह ना। तो रिसर्च के मुताबिक ये तकरीबन 65 to 70% होती है जो हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Clients will often communicate far more non-verbally than verbally। जो क्लाइंट्स होते हैं ये ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत कम बात करते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्किल। इस वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें शदीद बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। क्वेश्चनिंग इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर काउंसलर। काउंसलर के लिए क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम स्किल है। जस्ट एज इट इज़ इन कोचिंग, जिस तरह ये कोचिंग में होता है क्वेश्चन करना। काउंसलर यूज टू आस्क क्वेश्चन टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। काउंसलर अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन, ताकि चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सके। एंड आल्सो एन एक्टिव वे टू एक्सपोज द क्लाइंट फीलिंग इमोशंस, ताकि क्लाइंट की जो फीलिंग्स या इमोशंस हैं उनको एक्सपोज किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जा सके ताकि उसकी हेल्प की जा सके। They will also use to reflection to show that they have heard the client। तो वो यकीनन उस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करेगी जो वो अपने क्लाइंट से सुनते हैं।
एंड टू वैलिडेट द क्लाइंट्स फीलिंग एंड वर्ड्स, और क्लाइंट्स के जो फीलिंग जो वर्ड्स होते हैं उसको वैलिडेट भी करते हैं, उसको रिकग्नाइज भी करते हैं। काउंसलर आल्सो नीड टू बी एबल टू बिल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रैपो। काउंसलर को अपने जो क्लाइंट के साथ एक बहुत अच्छी रैपो बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है, बट नॉट टू एन एक्सटेंट, लेकिन इस हद तक भी नहीं दैट वुड अलाउ देम टू इमोशनली इन्वॉल्व, इस हद तक भी नहीं कि वो इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाए। यानी कि काउंसलर को अपने क्लाइंट के साथ एक फ़ासला रखने की ज़रूरत है, और ये जो फ़ासला है प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर होगा, प्रोफेशनली क्लाइंट को डील किया जाता है। दे आल्सो नीड टू बी एम्पैथेटिक, उन्हें एम्पैथेटिक भी होना पड़ता है। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट दे आर अवेयर ऑफ देयर क्लाइंट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, के वो अपने क्लाइंट की फीलिंग और इमोशन से अवेयर है, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एम्पैथी गोज बियॉन्ड बीइंग sympathetic, which is basically feeling sorry for someone, because the root of the world is to feel with। तो ये जो एम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक से थोड़ा सा एडवांस है, और इसमें फील विद का जो रूट है या जो कॉन्टेक्स्ट है वो यूज़ किया जा सकता है। तो एम्पैथी का मतलब ये भी है, काउंसलर अंडरस्टैंड दैट हाउ द क्लाइंट फील्स, काउंसलर समझता है कि उसका जो क्लाइंट है वो फील कैसे करता है, एंड कैन देयरफॉर आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, और इस वजह से अप्रोप्रिएट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एंड लीड द क्लाइंट टू पॉजिटिव कंक्लूजन, और रहनुमाई करता है अपने क्लाइंट की ताकि वो किसी पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंच जाए। ये जो एम्पैथी की नेचर है ना, वो है हेल्पिंग अदर एंड पर्टिकुलरली इन एम्पावरिंग देम, और यकीनन उनको इस काबिल बनाना है टू हेल्प देमसेल्व्स, को अपनी मदद खुद कर सके। सो दिस इज़ एन एसेंशियल स्किल एरिया, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर काउंसलर्स के लिए। नेक्स्ट एक पॉइंट है स्लाइड में, आप देखेंगे अ फाइनल थॉट के नाम से। लाइक कोचिंग की तरह काउंसलिंग इज रूटेड इन द प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल कैन हेल्प देमसेल्व्स। काउंसलिंग का ये एक प्रिंसिपल है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी मदद खुद कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट दे रिसीव द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट, कि उनको यकीनन जब ये अपनी हेल्प, जो क्लाइंट है वो अपनी हेल्प उस वक्त करेंगे जब उनको सही टाइम पे सही हेल्प मिल सकेगी। अ काउंसलर इज़ नॉट देयर टू टेल द क्लाइंट व्हाट टू डू, काउंसलर इसलिए नहीं होता कि वो क्लाइंट को बताए कि उसने करना क्या है और हाउ टू डू इट, और कैसे करना है, बट टू हेल्प देम वर्क आउट फॉर देमसेल्व्स what they are going to do and the best approach to take। लेकिन काउंसलर ये ज़रूर करता है कि जनाब किस तरीके से जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को जो है ना वो करना है, ताकि क्लाइंट के अंदर एक ऐसी सलाहियत पैदा हो कि उसने किस अप्रोच से अपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। इट इज़ देयरफॉर वेरी इंडिविजुअल एंड पर्सन सेंटर्ड, and those who provide counseling need to remember that above all। तो इसी वजह से ये एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच में आ जाता है कि बंदे की मर्ज़ी से ही जो है ना बंदे से काम लिया जाता है, या बंदे की मर्ज़ी से ही उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा की जाती है जिससे वो अपने प्रॉब्लम को खुद हल करता है।
लास्ट मेरे पास पॉइंट है काउंसलिंग इन एजुकेशन, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट इंस्टेड ऑफ, सॉरी. काउंसलिंग हैज़ इट्स वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. काउंसलिंग का एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा रोल है. अ टीचर वर्क्स एज अ काउंसलर फॉर ही स्लैश हर. टीचर, मैं पहले कह चुका हूँ, टीचर अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए हमेशा एक अच्छा काउंसलर ही होता है. स्टूडेंट्स आर ऑलवेज ब्लैंक टू देयर फ्यूचर. स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं अपने फ्यूचर के हवाले से एंड लाइफ, और उनको कोई पता नहीं होता अपनी ज़िंदगी में करना क्या है. देयरफॉर अ टीचर नीड्स टू प्ले हिज रोल ऑलवेज एज अ गुड काउंसलर. तो टीचर को हमेशा अपना जो रोल है एक अच्छे काउंसलर के तौर पे परफॉर्म करना चाहिए. इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन डिपेंड्स ऑन काउंसलिंग. ये भी कहा जा सकता है जो एजुकेशन है वो काउंसलिंग पे डिपेंड करती है. तो काउंसलिंग की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर स्पेशल एजुकेशन में बात की जाए, जनरल एजुकेशन हर जगह पे स्पेशल एजुकेशन को मिला, इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन. उम्मीद है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. इस हवाले से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, यू मे आस्क. थैंक यू वेरी मच. Swipe with two fingers, device unlocked.